Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 8, Habitat of Living Things. So open your book at page number 73. Let's start. Learning objectives. At the end of this chapter, you will be able to understand organisms and surroundings, learn the meaning of habitat, understand habitat and adaptations, type of habitat, study biotic and abiotic components of habitat, and understand the role of biotic and abiotic components. So these are the course contents. These are the topics which you have to cover in this chapter. Meaning of habitat, types of habitat, adaptations, components of habitats, role of biotic components, effect of abiotic factors on living things, interaction between biotic and abiotic components. Today we are going to discuss the meaning of habitat and the types of habitats. Habitat. The place where organisms live is called habitat. वो प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं. इट हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, ए होम. जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो क्या है? उसका होम है. सो इट इज कॉल्ड हैबिटेट. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स. हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को? फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, और वो सारी चीजें जिस ऑर्गेनिज्म को उसकी नीड है. फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ अ फ्रॉग इज फ्रेश वाटर व्हाइल द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज डेजर्ट. जो बोल रहे हैं जो फ्रॉग है वो कहाँ पे रहता है? फ्रेश वाटर में. वेयरएज जो कैमल है वो कहाँ पे रहता है? डेजर्ट में. इट मीन्स ये सारे क्या हैं? ये इसके हैबिटेट है. Every organism has its own habitat. First we will discuss the aquatic habitat. Aquatic means water. So when organisms live in water, this place of living is known as aquatic habitat. जब कोई organism पानी में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका aquatic habitat. Aquatic habitat हमारे पास किस टाइप के हो सकते हैं? Ponds हो सकते हैं, lakes, rivers, ओशंस. जो इनका मेन मीडियम क्या है एक्वेटिक हैबिटेट का? वाटर. अब जो एक्वेटिक हैबिटेट है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट. सीज एंड ओशंस विद सॉल्टी वाटर फॉर्म द मरीन हैबिटेट. जो सीज और ओशंस में वहां पे जो वाटर है वो किस टाइप का होता है? इट इज सॉल्टी. सो एंड इट इज नोन एज मरीन हैबिटेट. एंड जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते हैं दैट आर कॉल्ड marine organisms. Example, whales, turtles, starfish. Next is freshwater habitat. Ponds, pools, lakes and waters form the freshwater habitat. जो ponds हो गए, pools हो गए, lakes हो गए, river हो गए, जहाँ पे जो water है वो fresh है, this is known as freshwater habitat. अब जो animals रहते हैं इन habitat में are called aquatic animals. एंड जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इसमें दैट आर कॉल्ड हैलोफाइट्स. नेक्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. व्हेन ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल मींस लैंड. जब ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं उस प्लेस ऑफ लिविंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. फॉरेस्ट, डेजर्ट, ऑर्किड्स, टी गार्डन्स, माउंटेन्स, ये सारे क्या है हमारे पास? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स. फॉर एग्जांपल मंकीज, ट्री स्नेक्स, ये क्या है? ये ट्री पे रहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स. एंड द प्लांट्स जो ट्री की सपोर्ट से ग्रो करते हैं दैट आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स. Birds and insects that fly in air are called aerial animals. Birds और insects जो हवा में fly करते हैं that are called the aerial animals. Organisms which live in both aquatic as well as on land are called amphibians. जो organism पानी में भी रहते हैं और land में भी रहते हैं they are called amphibians. For example, frogs.
So these are the types of terrestrial habitats. Number first is rainforest habitat. Second is temperate forest. Third is boreal forest. Fourth is grassland. Number 5 is desert. Sixth is tundra. And seventh is mountain ridge. So we are going to discuss these habitats one by one. So let's start with the habitat number first, that is rainforest habitat. Rainforests are hot and moist. They get plenty of rain throughout the year. जो rainforest habitat होते हैं ये बहुत ज़्यादा hot और moist होते हैं. यहाँ पे throughout the year बहुत सारी rain होती है. Trees in the forest grow very tall because they have to compete with other plants for sunlight. यहाँ पे जो trees हैं वो बहुत tall होते हैं, बहुत लंबे grow करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको proper sunlight की ज़रूरत होती है और sunlight उन्हें कहाँ से मिलेगी? जब वो प्रॉपरली ग्रो करेंगे, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे ट्रीज है, उधर कंपटीशन हो जाता है ट्रीज के अंदर फॉर द सनलाइट. सो एवरी ट्री हैव टू ग्रो टॉलर. दीज फॉरेस्ट्स हैव टॉल ट्रीज. यहाँ पे मोस्टली टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स होते हैं और ग्रासेस होते हैं. सेकेंड इज टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट. Temperate forests are warm and humid during summer but cold and dry during winter. जो temperate forest होते हैं they are warm and humid during summer. ये summer के टाइम में warm और humid होते हैं, गर्मी होती है यहाँ पे, but cold and dry during the winter. Winter के टाइम में ये क्या होते हैं? Cold and dry. They have deciduous trees. यहाँ पे कौन से trees होते हैं? Deciduous trees. डेसिडुअस ट्रीज वो होते हैं जिनके लीव्स हैं जो फॉल ऑफ हो जाते हैं जब वो मैच्योरिटी आ जाती है उन पे. नेक्स्ट इज द बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट. बोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन हैविंग शॉर्ट समर एंड अ लॉन्ग विंटर. बोरियल फॉरेस्ट उस रीजन में होते हैं जहाँ पे जो समर्स हैं, गर्मियां हैं, वो शॉर्ट होती हैं और जो विंटर्स हैं वो लॉन्ग होती हैं. दे रिसीव हैवी रेनफॉल. ये यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है. जो यहाँ के ट्रीज हैं दे आर एवरग्रीन. दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड द शेप ऑफ द ट्री इज कॉनिकल. यहाँ की जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप होते हैं. द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक. एंड जो लीव्स होती हैं उन कॉनिकल शेप ट्रीज की वो कैसी होती हैं? निडल लाइक होती हैं. ग्रासलैंड हैबिटेट. ग्रासलैंड हैबिटेट आर हॉट and partially dry area where grasses are main plants and trees are few. Grassland habitat वो होता है यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत ड्राई सा एरिया होता है. यहाँ पे मेन हमारे पास कौन सा प्लांट है? ग्रासेस. जो ग्रास होते हैं वो यहाँ पे मेन होते हैं. जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं बट कम होते हैं. It provides home to both herbivores and carnivores. यहाँ पे दोनों टाइप के एनिमल्स रहते हैं, herbivores एनिमल्स भी और carnivore animals भी. Herbivores are those animals which eat the plant and its part. For example, zebras, giraffe, deer, elephants. And the carnivores are those which eat the flesh of other animals. For example, tiger, foxes, lion. Desert habitat. The deserts are the places that do not get much rain and are very dry. Deserts वो places होती हैं जहाँ पे पानी, जो बारिश है वो बहुत कम होती है और नहीं होती इवन, और बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं. अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट. हमारे जो अर्थ का लैंड है वो 1/5 किससे कवर है? डेजर्ट से. डेजर्ट हमारे पास हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं. डेजर्ट्स डू नॉट हैव मच वाटर. यहाँ पे जो पानी है उसकी स्कैरिसिटी रहती है, बहुत कम होता है. इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो वाटर है उसको कंजर्व करके रखते हैं और उसको कब यूज करते हैं? एट द राइट टाइम, जब उनको उसकी नीड होती है. नेक्स्ट इज द टुंड्रा हैबिटेट. टुंड्रा हैबिटेट्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो सो दे आर वेरी कोल्ड. जो टुंड्रा हैबिटेट होता है वो वहाँ पे हमेशा ऑल टाइम स्नो रहती है, और जहाँ पे स्नो है इट मीन्स दैट एरिया इज वेरी कोल्ड. तो यहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है. यहाँ पे हमारे पास कौन से एनिमल्स मिलते हैं? पोलर बियर्स, रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो डॉग्स. नेक्स्ट इज द माउंटेन हैबिटेट्स. माउंटेन हैबिटेट्स आर रॉकी एंड वेरी कोल्ड. यहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं और काफी ठंडा होता है. स्नोफॉल ऑकर्स इन विंटर
फॉलोड बाय चिली विंड्स। यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है वो विंटर्स के टाइम में होती है और साथ में बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती होती है। जो ट्रीज है यहाँ पे कोन शेप होते हैं। द लीव्स आर नीडल लाइक। जो लीव्स है यहाँ माउंटेन हैबिटेट के वो नीडल लाइक होते हैं। क्यों होते हैं? जब स्नो उसके ऊपर पड़ती है तो उस टाइम जो स्नो है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए उस नीडल लाइक शेप के कारण लीव्स की। यहाँ पे हमारे पास स्नो लेपर्ड्स हमें मिलते हैं, माउंटेन गोट्स मिलते हैं। So we have completed the topic habitat and its type. So this is your homework. Try to attempt all these questions and read page number 73 to 76 from your book for the better understanding of the topic which I taught you today. Thank you. Have a nice day.